انسان کی فطرت ہے جب اس کے پاس تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی طاقت یا تھوڑی سی کرسی آ جاتی ہے تو اس کے اندر کا فرعون جاگ اٹھتا ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سوا یہاں کوئی حاکم نہیں. تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، مطلب میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی. انہوں نے اپنے محلوں کو جنت سمجھا اور اپنی فوج کو اپنی طاقت. یہ عالی شان محل ہی میری جنت ہے اور یہ فوج میری طاقت. لیکن آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. ان کے نام صرف کتابوں کے پنوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں. آخر ان کی بادشاہت کو کس نے چھینا؟ وہ کون ہے جو موت کے بعد بھی زندہ ہے؟ آج ہم اس کلمے کی گہرائی میں جائیں گے جو انسان کو دنیا کے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے. یہ داستان ہے چوتھے کلمے کی، یعنی توحید کی. The fourth kalma, the king of kings. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تخت میرا ہے، حکم بھی میرا ہوگا. تیری جاگیر. زبان سنبھال کر، تجھے پتا نہیں میں کون ہوں. میری انگلی شریر سے الگ ہو گئی، خون بہ رہا ہے اور تجھے اس میں بھلائی نظر آتی ہے. بڑے نادان ہو چودھری صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ اس کلمے کا آغاز ہوتا ہے توحید سے، یعنی اللہ کو ایک ماننے سے. الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ذرا غور کیجئے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. حکم میرا چلے گا. آج فوج مشرق کی طرف جائے گی، ہرگز نہیں. فوج مغرب جائے گی. تخت میرا ہے، حکم بھی میرا ہوگا. یہ سلطنت میری ہے. تو اس پوری کائنات کو دو خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ استاد محترم، اگر کائنات کے دو خدا ہوتے تو شاید کام بڑھ جاتا. اس میں برائی کیا تھی؟ اگر دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. میں حکم دیتا ہوں، ابھی سورج نکلے گا. نہیں، میری مرضی سے ابھی رات رہے گی. دیکھ رہے ہو، اگر دو مالک ہوتے تو ہر کوئی اپنی مرضی چلاتا اور یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی. اللہ فرماتا ہے لا شریک لہ، یعنی نہ میری ذات میں کوئی سازی ہے، نہ میری طاقتوں میں کوئی حصے دار ہے. مجھے یہ نظام چلانے کے لیے کسی وزیر یا مددگار کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں. کلمے کا اگلا لفظ ہے لہ الملک، یعنی بادشاہت اور ملکیت صرف اسی کی ہے. دنیا کے بادشاہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے پر راج کرتے ہیں، وہ بھی چند سالوں کے لیے، پھر یا تو تختہ پلٹ جاتا ہے یا موت آ دبوچتی ہے. لیکن اللہ کی بادشاہت ذرے سے لے کر کہکشاں یعنی گیلیکسیز تک ہے. زمین کے اندر چھپے خزانے سے لے کر سمندر کی گہرائی تک جس پر اس کا نام لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. نکل جا یہاں سے. یہ کھیت، یہ باغ، یہ زمین سب میرا ہے. یہاں کا ذرہ ذرہ میری جاگیر ہے. تیری جاگیر. بڑے نادان ہو چودھری صاحب. اے فقیر، زبان سنبھال کر، تجھے پتا نہیں میں کون ہوں. یہ پوری ریاست میرے باپ دادا کی نشانی ہے. اچھا تو ذرا یہ بتا، تیرے دادا سے پہلے اس زمین پر کس کا نام تھا؟ وہ میرے پردادا کی تھی، اور ان سے پہلے، اس سے پہلے کسی اور کی ہوگی. تجھے کیا؟ اور جب تو مر جائے گا تو کیا اس زمین کو اپنی قبر میں اوڑھ کر سوئے گا؟ ارے نادان، یہ زمین تیری نہیں، تو اس زمین کا ہے. یہ تو وہ مسافر خانہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں، رات بھر رکتے ہیں اور صبح چلے جاتے ہیں. سرائے وہیں رہتی ہے، بس مسافر بدل جاتے ہیں. جب آپ لہ الملک کہتے ہیں تو آپ اپنی اکڑ توڑ دیتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے. نہیں، سب اس کا ہے، ہم تو صرف کچھ دن کے رکھوالے ہیں. تیسرا اہم حصہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اسی کے لیے ہیں.
हम दुनिया में किसी की तारीफ क्यों करते हैं? या तो वो चीज खूबसूरत हो या उसने हम पर कोई एहसान किया हो। सुभान अल्लाह, ऐ कारीगर, तेरे हाथों में जादू है। ऐसी नक्काशी तो आज तक अरब और अजम में किसी ने नहीं देखी। तू तो कमाल का मुसव्विर है। माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, तारीफ मेरे हाथों की मत कीजिए। क्यों? ये मेहनत तो तेरी है। हुजूर, ये हाथ तो कल मिट्टी हो जाएंगे। ये पत्थर और ये रंग भी बेजान थे। मेरे दिल में ये ख्याल डालने वाला और मेरी उंगलियों में ये हुनर बख्शने वाला मेरा रब है। अगर वो न चाहता तो मैं एक लकीर भी सीधी नहीं खींच सकता था। जाहिर है सारी वाहवाही उस खालिक की होती है, मखलूक की नहीं। इंसान तो महज एक कलम है जिससे लिखने वाला मेरा रब है। ये तो थी हुनर और खूबसूरती की बात, लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आती है और कोई हमारी मदद करता है तब भी हम अक्सर असल दाता को भूल जाते हैं। जरा इस प्यासे मुसाफिर को देखिए। ऐ मुसाफिर, तेरा शुक्रिया। तूने मुझे नई जिंदगी दी। तू मेरा मसीहा है। नादान मत बन भाई। जब शाही कासिद बादशाह का इनाम लेकर आता है तो शुक्रिया कासिद का नहीं, भेजने वाले बादशाह का अदा किया जाता है। मैं तो बस एक जरिया हूं। तुझे प्यास भी उसने दी थी और इस वीराने में मुझ तक तेरा रिज्क भी उसने भेजा है। तारीफ सिर्फ उस रब्बुल आलमीन की कर। इसलिए एक मोमिन हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे खुशी हो या गम, क्योंकि वो जानता है कि तारीफ मुसब्बिब की होती है, सबब की नहीं। अब आता है सबसे भारी हिस्सा, युही व युमीतु, मतलब वही जिंदा करता है वही मारता है। इस पर एक ऐतिहासिक मुकाबला सुनिए। वक्त के सबसे बड़े जालिम और खुद को खुदा कहने वाले बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इब्राहिम, तू अपने आप को क्या समझता है? तू मेरे खुदाओं को बुरा कहता है? बता, तेरा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में बोला, रब्बी अल्लज़ी युहय्यी व युमीतु, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने सोचा ये तो बहुत आसान है। उसने फौरन 2 कैदियों को बुलाया। इस कैदी को आजाद कर दो और इस दूसरे को कत्ल कर दो। देखा, मैंने एक को जिंदगी दी, एक को मौत दी। मैं हूं रब। यहाँ नमरूद ने लफ्जों का खेल खेला। उसने रिहाई को जिंदगी और कत्ल को मौत समझ लिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस नहीं की, बल्कि एक ऐसी दलील पेश की जिसने उसका मुंह बंद कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। कुरान कहता है फबुहित अल्लज़ी कफर, बस वो काफिर हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरी भरी महफिल में उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह की बोलती बंद हो गई थी। नमरूद ने कहा था, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि किसी को जेल से छोड़ देना जिंदगी देना नहीं है और किसी का गला काट देना मौत देना नहीं है। असल हया वो है जो बेजान पानी की बूंद से इंसान बना दे, और असल मौत वो है जो चलते फिरते इंसान की रूह कब्ज कर ले। ये इख्तियार और कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर फरमाया वहुवा हय्युल ला यमूतु, और वो ऐसा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। मेरे भाई, मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मुझे जाने का डर नहीं, मगर मेरे बाद इन मासूम बच्चों का क्या होगा? ऐ मेरे भाई, अपना दिल छोटा मत कर। जब तू पैदा हुआ था तब तुझे किसने पाला था? अल्लाह ने। तो क्या वो अब जिंदा नहीं है? तू जा रहा है, मगर इनका असली पालने वाला बाकी है। बच्चों को उस जिंदा के हवाले कर जो कभी नहीं मरता। इंसान का दिल हमेशा एक खौफ में रहता है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का सहारा कौन बनेगा? अगर मेरे सर से बाप का साया उठ गया तो मेरा क्या होगा? इस खौफ को खत्म करने के लिए जंगे उहद का वो मंजर याद कीजिए जब शैतान ने ये झूठी अफवाह उड़ा दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। पहाड़ जैसा ईमान रखने वाले सहाबा भी गम से निढाल हो गए। कुछ ने तो हथियार डाल दिए कि जब रसूल ही नहीं रहे तो अब हम लड़कर क्या करेंगे? ए लोगों,
यहाँ क्यों बैठे हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, अब हम किसके लिए लड़ें? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले भी गए तो क्या हुआ? जिस रब के लिए वो लड़ते थे वो रब तो जिंदा है, वो रब कभी नहीं मर सकता। उठो और उसी रास्ते पर जान दे दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज हमारी मायूसी का इलाज है। हम इंसानों के भरोसे जीते हैं, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं या अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं तो हम टूट जाते हैं। चौथा कलमा सिखाता है, लेकिन तुम्हारा असली सहारा ला यमूत यानी अल्लाह है। वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब हमें यकीन हो गया कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है तो अगला लफ्ज उसकी शान बयान करता है, जुल जलाली वल इकराम, मतलब वो बड़े जलाल, दबदबे और इज्जत वाला है। दुनिया के बादशाहों का जलाल सिर्फ उनके डराने में होता है, वो अपनी ताकत से लोगों को खौफजदा रखते हैं, लेकिन अल्लाह जुल जलाल भी है और वल इकराम भी, यानी वो ताकतवर भी है और इज्जत बख्शने वाला करीम भी। उसके जलाल का आलम यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर उसकी एक तजल्ली भी बर्दाश्त न कर सके, और उसके इकराम का आलम यह है कि वो हम जैसे गुनहगारों को भी रोजी देता है। ये खौफ और उम्मीद का सबसे बेहतरीन इम्तिजाज है। इसके बाद कलमे का एक बहुत ही प्यारा लफ्ज आता है, बियदिहिल खैर, यानी तमाम भलाई उसी के हाथ में है। अक्सर जब हम पर मुसीबत आती है तो हम शिकवा करते हैं, लेकिन इस खैर के राज को समझने के लिए उस वजीर का किस्सा सुनिए। मेरी उंगली, हकीम को बुलाओ, खून रुक नहीं रहा। बादशाह सलामत, घबराइए नहीं, सब्र कीजिए, अल्लाह जो करता है उसमें खैर होती है। खैर? मेरी उंगली शरीर से अलग हो गई, खून बह रहा है और तुझे इसमें भलाई नजर आती है? तू मेरा वजीर है या दुश्मन? सिपाही, ले जाओ इस पागल को और डाल दो इसे काल कोठरी में। देखता हूं जेल जाने में इसके लिए क्या खैर है। बादशाह को क्या मालूम था कि अल्लाह ने उसकी तकदीर में आगे क्या लिखा है। कुछ दिन बाद बादशाह जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। वहां एक जंगली कबीले ने उसे पकड़ लिया। आज हमारे देवता खुश होंगे, एक शाही शिकार मिला है, इसकी बलि चढ़ाओ। वो लोग अपने झूठे खुदा को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि चढ़ाना चाहते थे। वो बादशाह को कत्ल करने ही वाले थे कि उनकी नजर उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। रुको, ये क्या? इसकी उंगली कटी हुई है। कबीले के सरदार ने चीख कर कहा, रुको, इसे छोड़ दो, ये शख्स ऐबदार है और हमारे माबूद ऐबदार इंसान की भेंट कबूल नहीं करते। छोड़ दो इसे, ये शख्स ऐबदार है। हमारे देवता किसी अधूरे इंसान की भेंट कबूल नहीं करते। इसे जंगल से बाहर फेंक दो। बादशाह को समझ आ गया कि उस दिन उंगली का कटना उसके लिए खैर था, जिसने आज उसकी जान बचा ली। उसने वजीर से माफी मांगी और पूछा, वजीर, तुम सच कहते थे, मेरी कटी हुई उंगली ने आज मेरी गर्दन बचा ली। अगर उंगली सलामत होती तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मेरी उंगली कटी, इसमें मेरी जान बची, लेकिन मैंने तुम्हें जेल भेजा, तुम भूखे प्यासे यहां रहे, इसमें तुम्हारे लिए क्या खैर थी? यह तो बहुत सादा बात है। अगर मैं जेल में न होता तो मैं और शिकार पर आपके साथ होता। वो आपको तो ऐबदार समझकर छोड़ देते, लेकिन मैं तो सही सलामत था। आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा दी जाती। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं बियदिहिल खैर। अल्लाह हमारी तकदीर में जो लिखता है उसमें भलाई होती है, चाहे हमारी छोटी अक्ल उसे समझ पाए या ना पाए। और आखिर में इस अजीम कलमे की मोहर, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर यानी कुदरत रखने वाला है। हमला करो, आज दुश्मन का नामो निशान मिटा दो। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं, तख्त पलट चुका है। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह की ताकत का दरोमदार उसकी फौज और खजाने पर होता है। अगर फौज बगावत कर दें तो बादशाह सड़क पर आ जाता है, लेकिन मेरे अल्लाह की बादशाहत किसी सबब या वसीले की मोहताज नहीं। वो कुन यानी हो जा कहता है और फयाकून, और वो हो जाता है।
देखता हूँ आज इब्राहिम को कौन बचाता है। जला कर राख कर दो इसे। दुनिया का कानून है कि आग जलाती है, लेकिन अल्लाह उस कानून का पाबंद नहीं। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो अल्लाह ने आग की फितरत बदल दी। हुक्म हुआ, या नारू कूनी बर्दन व सलामन, ए आग ठंडी हो जा। और वो दहकती आग फूलों का बगीचा बन गई। ए मूसा, हम तुम तो मारे गए। आगे मंदिर, पीछे फिरौन, अब कोई रास्ता नहीं। दुनिया कहती है कि पानी डुबो देता है, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो उसी अल्लाह ने बहते हुए पानी को सूखी सड़क बना दिया। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो आप अपनी नामुमकिन लगने वाली परेशानियों से कहते हैं, मेरी मुसीबत बड़ी है मगर मेरा अल्लाह उससे भी बड़ा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों, बाजार वो जगह है जहां शैतान अपने झंडे गाड़ता है, जहां इंसान अल्लाह को भूलकर सिर्फ मुनाफे की सोचता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है जो वहां भी हमारी हिफाजत करेगा। हदीस में आता है, जो शख्स बाजार में दाखिल होते वक्त चौथा कलमा पढ़ ले, अल्लाह उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देता है और जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता है। अल्लाहु अकबर। और हम इज्जत और रिज्क पाने के लिए दुनियादारों की चौखट पर सर झुकाते हैं, लेकिन चौथा कलमा हमें बताता है कि खैर किसी इंसान की जेब में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अगली बार जब बाजार जाओ या जब दुनिया की चमक दमक आपको डराने लगे तो अपनी जबान से चौथे कलमे की तलवार निकालना और अपने दिल को यकीन दिलाना कि बादशाहत किसी इंसान की नहीं, सिर्फ उस रब्बुल आलमीन की है। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें तौहीद की हकीकत समझने की तौफीक दे, हमारे दिलों से दुनिया का डर निकाल दे, हमें बाजार की गफलत से बचा, और जब हमारी मौत आए तो हमारी जबान पर तेरा ही नाम हो। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन या अल्लाहु अकबर लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी आमीन से हम सब की मगफिरत हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।